Hello students, welcome to English grammar class. Our today's lesson is modals. Dear students, I hope you are familiar with the following English words: can, could, may, might, should, must, shall, would, will. In English language, these words are called modals. Now, modals are followed by the first form of a verb. मतलब modals के बाद जो है verb का first form होता है. Now, let's start our day's lesson with the use of may. Now, read the following sentences. Number 1, may I come in, sir? Number 2, the sky is dark and cloudy. It may rain. In the first sentence, the word may indicates that the speaker asks the person for permission. And in the second sentence, the word may indicates the possibility of rain. मतलब पहला जो सेंटेंस है मे आई कम इन सर, इसको पढ़ने से पता चलता है कि कोई शख्स जो है परमिशन चाहता है अंदर आने के लिए. और दूसरा सेंटेंस में क्या है कि स्काई जो है डार्क एंड क्लाउडी है, इसलिए रेन के जो है मुमकिन है कि रेन हो सकता है. तीसरा समय क्या देगा कि मे का इस्तेमाल पहला सेंटेंस में परमिशन के लिए हुआ और दूसरे में जो है पॉसिबिलिटी के लिए हुआ. इस तरह से द मॉडल मे इज यूज्ड बोथ फॉर आस्किंग फॉर परमिशन एंड पॉसिबिलिटी. यूज ऑफ मे नॉट. अब मे नॉट नेगेटिव है, इसका देखिए. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नंबर 1, although he has promised he may not come. Number 2, though the sky is cloudy it may not rain. The words may not indicate absence of possibility. मतलब यहाँ पर क्या है कि प्रॉमिस तो किया है उसने आने का, लेकिन नहीं भी आ सकता है, माने पॉसिबिलिटी नहीं है. मे नॉट, तो मे नॉट इंडिकेट करता है क्या कि एब्सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, माने किसी काम के होने का इम्कान नहीं है. आप देखिए some more examples. Number 1, he may leave the meeting, indicating permission. That boy may win the race, indicating possibility. She may go home after tiffin hours, indicating permission. Number 4, my son may pass the NEET, indicating possibility. Number 5, they may join the picnic, indicating permission. Number 6, the train may reach the station timely, indicating possibility. So there are three sentences in which the word may shows permission, and in the rest 3 sentences the word may shows possibility. Now might is the past tense of may. So might is used always in the past tense. For example, the doctor said that the patient might recover soon. Might indicating possibility. यहाँ भी possibility है, इम्कान है कि पेशेंट जो है ठीक हो जाएगा. Number 2, he asked me if he might use my mobile for a call, indicating permission. ठीक है, उसने मुझसे पूछा कि फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, जाहिर सी बात है परमिशन की तलब है इसमें. अच्छा, अब जहाँ पर हम लोग मे का यूज़ करते हैं माने आस्किंग फॉर परमिशन के लिए, उस जगह पर माइट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे माइट आई यूज़ योर फोन, मतलब यहाँ पर मे आई यूज़ योर फोन हम बोल सकते हैं, उसके जगह पर माइट आई यूज़ योर फोन भी बोल सकते हैं. माइट आई बोरो योर अम्ब्रेला, मतलब मे आई बोरो योर अम्ब्रेला. तो माइट को जो है हम लोग मे के जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं आस्किंग फॉर परमिशन. Now use of can and cannot. Read the following sentences. He can read English but he cannot speak English. Here the word can indicates ability and cannot indicate inability. मतलब यहाँ पर can जो है उससे सलाहियत जो है इंडिकेट करता है और cannot जो है अदम सलाहियत इंडिकेट करता है.
दूसरा सेंटेंस देखिए, यू कैन यूज माई कंप्यूटर। अब यहाँ पर यू कैन क्या इंडिकेट कर रहा है, समबडी इज गिविंग यू परमिशन। नंबर 3, यू कैनॉट यूज माई कंप्यूटर, द परमिशन इज डिक्लाइन, पर्सन जो है डिक्लाइनिंग परमिशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर परमिशन ग्रांट नहीं कर रहा है, नहीं तुम हमारा कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते, मतलब परमिशन इज नॉट ग्रांटेड। यू कैन यूज माई कंप्यूटर, यस परमिशन इज ग्रांटेड, यू कैन यूज। तो इस तरह से कैन परमिशन को इंडिकेट करता है, कैन नॉट परमिशन को डिक्लाइनिंग करने का इंडिकेट करता है, ठीक है। मोर एग्जाम्पल्स, ही कैन बैट वेल बट ही कैन नॉट बॉल वेल। नंबर 2, शी कैन डांस बट शी कैनॉट सिंग। नंबर 3, I can swim but I cannot climb a tree. Number 4, the blind cannot see and the dumb cannot speak. So in the above sentences, can indicates ability and cannot indicate inability. ठीक है। सेंटेंस नंबर 5 देखिए, कैन आई टेक योर बाइक, आस्किंग फॉर परमिशन, वही सेंटेंस है, मे आई टेक योर बाइक। नंबर 6, यू कैन टेक माई बाइक, ग्रांटिंग परमिशन, परमिशन ग्रांट, तो कैन का इस्तेमाल यहाँ पर परमिशन के लिए भी है, आस्किंग फॉर परमिशन और ग्रांटिंग परमिशन, ठीक है। तो इस तरह से कैन एबिलिटी, कैन नॉट इनएबिलिटी और कैन परमिशन के लिए। यूज ऑफ मस्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, tomorrow is the last date of submission, you must submit the form tomorrow। अब यहाँ पर देखिए, जो वर्ड मस्ट है इंडिकेट दैट समथिंग इज कंपल्सरी, समथिंग इज नेसेसरी एंड इट मस्ट बी डन। मतलब यहाँ पर मस्ट से क्या पता चलता है, यू मस्ट सबमिट द फॉर्म टुमारो बिकॉज टुमारो इज द लास्ट डे आफ्टर विच यू वोंट बी अलाउड टू सबमिट द फॉर्म। तो मस्ट का इस्तेमाल पर कि किसी काम को करना लाजमी है, समथिंग इज कंपल्सरी, करना पड़ेगा। मोर एग्जाम्पल्स, नंबर 1, वी मस्ट ईट एंड ड्रिंक टू लिव। नंबर 2, पेशेंट्स मस्ट टेक मेडिसिन्स टू रिकवर। नंबर 3, स्टूडेंट्स मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। नंबर 4, बाइकर्स मस्ट वेयर हेलमेट्स वाइल ड्राइविंग। सो मस्ट जो है एम्फेसिस के लिए भी होता है, मैंने इसको जोर देने के लिए, मैंने जो एक्शन, जिस एक्शन को करना है उस एक्शन पर जोर देने के लिए मस्ट का इस्तेमाल होता है, और ये लाजमन के लिए भी इस्तेमाल होता है। यूज ऑफ मस्ट नॉट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट गो टू स्कूल विदाउट यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर देखिए मस्ट नॉट से क्या मतलब निकला, मस्ट नॉट इंडिकेट दैट वी शुड नॉट अवॉइड व्हाट इज कंपल्सरी, मतलब जो काम लाजमन करना है उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, उसको करना होगा। तो मस्ट नॉट इंडिकेट ये करता है कि यू कांट अवॉइड व्हाट इज कंपल्सरी। मोर एग्जाम्पल्स, वी मस्ट नॉट ईट अनहेल्दी फूड। नंबर 2, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट यूज अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। Number 3, books must not be taken in the examination room. Number 4, air must not be polluted. ठीक है, तो इस तरह से हम देख लिए कि यूज ऑफ मस्ट नॉट कहाँ पर होता है। अब देखिए यूज ऑफ शुड एंड शुड नॉट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। नंबर 2, we should not smoke cigarettes in public places। अब यहाँ पर देखिए the word should indicates that good actions be done। अब should से यहाँ क्या पता चलता है, जो good actions है that should be done, उसको करना चाहिए, ठीक है। and the word should not indicate the wrong actions not be done, जो गलत काम है उसको नहीं करना है। यहाँ पर जो है एक मोरालिटी का जो है माने बात उठता है, एथिक्स का, माने एथिकल वर्क, मोरल वर्क, जो काम जो है जिसको करना चाहिए और किसी काम को कुछ नहीं करना चाहिए, ये ठीक है। जैसे मोर एग्जाम्पल्स देखिए, वी शुड प्लांट ट्रीज टू मेक द एनवायरनमेंट क्लीन। नंबर 2, everyone should help the poor and the needy. Number 3, we should arise early in the morning. Number 4, children should obey their parents.
Number 5, we should not tell a lie. Number 6, students should not cheat during examination. Number 7, we should not go to sleep late at night. तो ये यहाँ पर जो है कौन कौन सा काम नहीं करना है उसको लिखा हुआ है, कौन कौन सा काम करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट 4 actions should be done and the last 3 1 should not be done. Shall I and shall we are used in the interrogative sentences to express wish, permission. मतलब shall का जो अंग्रेजी में यूज होता है वो तो फ्यूचर टेंस के लिए होता है, आप लोग जानते ही होंगे. लेकिन shall I एक साथ और shall we एक साथ, इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं विश परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए. जैसे shall I drive, मतलब कोई गाड़ी कोई और चला रहा था, उसने पूछे भाई हम चलाएं गाड़ी, क्या मैं चला सकता हूँ, परमिशन है यहाँ भी. shall I drive. Number 2, shall we play in the garden. Number 3, shall we meet at the station. Number 4, shall I sit here. तो इस तरह से हमने देखा कि अंग्रेजी में जो मॉडल्स हैं कैन, कैनॉट, ठीक है, मे, माइट, विल, शैल, इसका किस तरह से इस्तेमाल होता है. हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा लेसन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से. तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त और अहबाब को बोलिए मेरे वीडियोस को देखें और मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, खुद को फ़ायदा लीजिए, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाइए. थैंक यू वेरी मच.